Assalamu alaikum and welcome to Yes Chef with Samia Asim. This is the second day of Noodle Week. Yesterday we went to Italy and we made our pasta pomodoro. आज जो है we are heading a little bit closer to Pakistan. हम लोग जा रहे हैं all the way to Indonesia and we're making the classic comfort food. यहाँ पे street food में भी मिलता है and this is bami goreng या mee goreng. और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि this is the couple of elements that we have. हमारे पास यहाँ पे दो proteins हैं. Yesterday we made it without any sort of protein. उसके अंदर कोई chicken, कोई भी shrimps, no beef, nothing was used. इसमें जो है we're using two different kinds. So noodle week के अंदर मैं actually यही चाहती हूँ कि आप लोग notice करें कि we have one common ingredient which are noodles. Ideally spaghetti shaped और इसके बाद फिर जो है we have so many different kinds of ingredients. इसके अंदर हमारे पास sauces बहुत सारे हैं which we're going to make a very rich umami flavor. Yesterday we had a very tomatoey flavor, वहाँ पे different ingredients थे, वहाँ पे different proteins इस्तेमाल कर रहे हैं. तो one thing in different locations can really change the whole dish. और यही चीज़ जो है हम लोग आगे day 3, day 4, day 5 में भी नोटिस करेंगे. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, let's start with our noodles. यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन करके as always since we're making noodles यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि we're going to let it boil, add in some salt और उसके बाद फिर we'll wait till it reaches boiling point. So I'm going to grab about 2 teaspoons of salt and that's it. और उसके बाद फिर इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे and by the time कि it reaches boiling point फिर we will add in our noodles. तो yesterday was a complete one dish हमारी रेसिपी थी कि वहाँ पे आपने एक ही सारी ingredients एक ही pot में डाला, you toss everything, you cook it well और उसके बाद फिर your dish is ready. इसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे because we will need to make our eggs, we'll need to make our chicken, the shrimps और इसके बाद फिर noodles ही बन रहे हैं. So this is about 2 pot की recipe but this is also a comfort food. It's delicious और जैसे आप in fact जब kitchen में मैं आई थी तो because of the ingredients जो हमारे पास यहाँ पे रखी हैं, namely the soya sauce, the dark soya sauce, of course the ketchup, थोड़ा सा red chili paste हमारा यहाँ पे जो है we have a very strong flavor, मतलब it actually hits you. आगे मज़ीद बात करते हैं लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा break and we'll be right back. Welcome back from the break. हम लोग बना रहे थे bami goreng and हमने यहाँ पे पानी को यहाँ पे boil कर दिया था and we let it rest ताकि we had enough time to film it and show it as well. कुछ मेरे पास छोटे पीसेस भी हैं यहाँ पे तो उनको भी हम लोग ऐड कर देंगे. ये जो नॉर्मली पैकेट में टूट जाते हैं ख़ुद आपने नहीं तोड़ने हैं, we need whole pieces और इसको भी हम लोग boil होने देते हैं. Meanwhile, it is 11:22. Your time check is brought to you by Yes Chef. 11:22 है. That means we need to get a quick catch up on our recipe. और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? We're going to add in some oil. Okay. Oil अंदर add कर देंगे. उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे garlic paste या chopped garlic, whichever you have. That's it for now. और इसके बाद फिर we're going to add in some garlic, फिर we're going to add in the chicken. So this is a good amount of garlic. I really like garlic. I love the aroma, the flavor. तो मैं normally कोई भी रेसिपी लिखी हुई है उसके अंदर आपने 1 या 2 garlic cloves add करने हैं. I normally end up adding at least 4 to 5. और वो ज़्यादातर वो recipes होती हैं कभी कभार जो आप लोग जो वेस्टर्नर्स बनाते हैं because they don't like that much garlic तो मैं उनमें भी ज़्यादा डाल देती हूँ because you can't have enough garlic. It's amazing. तो यहाँ पे garlic डाल के once it starts turning a little bit light golden तो इसके अंदर we're going to add in the chicken. इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं. Making some space. तो chicken हालांकि बहुत जल्दी बन जाती है. It is a little bit more time taking compared to your prawns. तो पहले मैं chicken को डाल लूँगी. Once the chicken is almost cooked, तो फिर we'll add in the prawns as well. So once the chicken changes color, उसके अंदर वो हल्का सा pinkish जो इसका effect है वो ख़त्म हो जाएगा. तो फिर we'll add in our prawns और prawns के बाद फिर we'll add in our cabbages. तो हम लोग उस process में डाल रहे हैं कि slowest cooking to the fastest cooking. और क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि cabbage जो है वो बिल्कुल ही wilt कर जाए यानी कि वो बिल्कुल ही soft से soggy से हो जाए, उनका एक natural crunch जो है वो हल्का सा maintain रहे.
तो उसको हम लोग बिल्कुल एंड में डालेंगे। तो जब तक हमारी चिकन हो रही है, वी आर गोइंग टू गेट अ हेड स्टार्ट ऑन आवर सॉस। यहाँ पे हमारे पास एक स्पून है। तो अ कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स हियर, एक तो मेरे पास यहाँ पे डार्क सोया है एंड लाइट सोया, और एक मैं बनाना चाहूँगी केचप मानीस, यानी कि अब ये जो है दिस इज़ डार्क स्वीट सोया सॉस। अब अगर आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाए, जो प्रॉबली मुश्किल से ही मिलेगा इन पाकिस्तान, तो उसको हमने क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन यूजिंग इंग्रेडिएंट्स जो हमें ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये आपका इस तरह बजट कंट्रोल भी होगा, यू वॉन्ट हैव टू बाय समथिंग दैट्स वेरी रेयर। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे 1 टीस्पून सोया सॉस डाल रहे हैं, 2 टीस्पून्स लाइट सोया सॉस, एंड इसके बाद में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हनी। तो इससे ये होगा कि वी आर गोइंग टू हैव ए बैलेंस्ड स्वीट डार्क सोया सॉस। सो 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून्स। ठीक है, और इसको जब हम लोग मिक्स कर देंगे तो वी विल हैव अ गुड अल्टरनेटिव, ईजी, मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू द स्वीट डार्क सोया सॉस। और इसको हम लोग चिकन में डाल के टॉस कर देते हैं, लेकिन डू नॉट गो एनीवेयर। हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल बी कंटिन्यूइंग ऑन विद आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे जो हमारी स्वीट डार्क सोया सॉस था, जो हमने इसका होममेड वर्जन बनाया था, वो हमने अंदर डाल लिया था। उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू ऐड इन सम नॉर्मल सोया सॉस, सम डार्क सोया एंड सम केचप। सो अगेन 2 टीस्पून्स इधर, 1 टेबलस्पून ऑफ डार्क सोया सॉस फॉर द कलर। ये लेकिन आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर शेड चाहिए हो। सम केचप, I'm going to take it all। और अब अगर आप लोगों को टेस्ट आई वुड रिकमेंड कि एक टेस्ट टेस्ट कर दें, और अगर ज़रूरत पड़े तो ऐड इन सम सॉल्ट, अदरवाइज लेट इट बी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी सॉल्ट कंटेंट काफ़ी डाल चुके हैं। इट्स ऑलरेडी क्वाइट फ्लेवरफुल, गिविंग इट अ गुड मिक्स। और अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे अ लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर जो है वो सिर्फ आपको हल्का सा एक स्पाइस एलिमेंट देने के लिए है। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, नहीं अगर आपको पसंद आया या फिर इफ़ यू वांट टू ओमिट इट, यू डेफिनेटली कैन। तो इसके अंदर ये इसको मिक्स करके, ओके, चिकन हमारी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे आवर श्रिम्प्स। तो श्रिम्प्स जो हैं देर डीवेन्ड, उनके अंदर से शेल भी निकाल चुके हैं, टेल्स भी निकाल चुके हैं, देर आर रेडी। और इसको इधर रख देते हैं। सो गिविंग इट ए गुड टॉस, क्योंकि हम लोग श्रिम्प्स को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग कि जब उसको ज़्यादा ओवर कुक करते हैं, इट टर्न्स इनटू रबर, इट बिकम्स स्ट्रेची, इट्स नो लॉन्गर स्वीट एंड टेंडर। तो जब तक ये हो रहा है, इट्स नॉट फुली कुक्ड येट, लेकिन मैं इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल लूँगी, और वो है हमारे पास जूलियन कट कैबेजेस। थोड़ा सा यहाँ पे है और मेरे पास थोड़ा सा इस बोल में है। नूडल्स भी हमारे जो हैं वो दे कुक्ड फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर, और वो हो चुके थे। वी स्ट्रेन्ड इट आउट, उसको पानी के अंदर रन कर दिया है। अब इसको बस मैं जल्दी जल्दी टॉस करूँगी। वंस दिस इज़ फुली मिक्स और आपको लगता है कि इट्स ऑल गुड टू गो, तो फिर इसके अंदर हम लोग नूडल्स डाल देंगे। विल गिव दैट ए गुड टॉस एज वेल। और फिर हमारे पास एक एलिमेंट और रह जाएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द एग्स। तो एग्स जो है वो हम लोग चाहें तो इसको 2 डिफरेंट तरीके से सर्व कर सकते हैं। नंबर 1, आप उसको एक हाफ फ्राई अंडा बनाएं, उसको या फुल फ्राई अंडा बना दें, गिव इट अ गुड नाइस लुक, और इसके बाद फिर इसको पूरे नूडल्स के ऊपर साथ सर्व कर दें। सेकेंड ऑप्शन वो है जो हम लोग अभी करेंगे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू येट बिकॉज आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। तो इसको अच्छे से मिक्स करके, और एट दिस पॉइंट अब मैं चूल्हे को ऑफ कर दूँगी, एंड आई एम गोइंग टू लेट इट कूल अ बिट, क्योंकि अभी जो है मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट पर आती हूँ, विच इज़ क्रैकिंग इन द एग्स, और इसके बाद फिर मेकिंग आवर ऑमलेट्स। येस, वी आर मेकिंग एन ऑमलेट, और ऑमलेट जो है इसके अंदर हम लोग सिर्फ 2 चीज़ें डालेंगे, दैट इज़ salt and pepper. So that's 1 egg, and that's egg number 2.
ओके इसको जब तक हम लोग फेंटते हैं, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो विल मेक आवर ऑमलेट एज वेल, और इसके बाद फिर हम लोग जब तक सॉल्ट एंड पेपर के साथ सीजनिंग भी कर देते हैं। मीनवाइल हम लोग ब्रेक के अंदर जो हमारे नूडल्स हैं वो भी अंदर डाल देंगे एंड विल गिव इट अ गुड मिक्स। सो डोंट गो एनीवेयर, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back from the break to the final segment, which is as always my favorite. यहाँ पे हमारे पास जो बामी गोरैंग बन रहा था, this is almost ready। हम लोग सारी चीज़ें अंदर डाल चुके हैं, चिकन है, श्रिम्प्स हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो कैबेजेस थे वो भी डाल चुके हैं। We tossed in the noodles as well। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ और बची है and that is the green chilies। तो green chilies मैं बल्कि थोड़े से अंदर डाल देती हूँ। Let's switch this on ताकि we have a nice steamy hot wok। हाफ द ग्रीन चिलीज़, बाकी हाफ जो है उसको मैं गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लूँगी। सो जस्ट अ लिटिल बिट। और इसके बाद फिर मेरे पास बचेंगे दी स्प्रिंग अनियंस। वैसे रेसिपी कार्ड आपके सामने चल रही है तो यू कैन हैव अ क्विक लिटिल रिकैप। एक चीज़ अब मैं यहाँ पे ये करूँगी कि मैंने जो यहाँ पे ऑमलेट बनाया था उसको मैं यहाँ पे रोल कर दूँगी इनटू थ्रीज़, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे काट के रख देंगे। एंड व्हाट वी गोना हैव इज़ वी गोना हैव नाइस लिटिल एग नूडल्स। तो एग नूडल्स यहाँ पे वैसे भी थे एंड देन वी गोना हैव एग नूडल्स लिटरली। तो यहाँ पे इसको काट के बल्कि इसको भी साइड पे रखती हूँ बिकॉज दिस वाज अ सेपरेट पीस। और इसके बाद फिर व्हेन वी ओपन इट तो फिर वी हैव नाइस लिटिल लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो बल्कि इसको जो है वो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पे सब उठाकर फिर I'll just toss it in। तो ये भी एक दूसरा स्टाइल है सर्व करने का इफ़ यू वांट, अदरवाइज उसके अंदर आप उसका वो ही बनाएं, एक हाफ फ्राई और फुल फ्राई, और उसके बाद उसको अंदर टॉस ऑन कर दें। यू कैन लीव इट अप फॉर टॉप साइड फॉर द गार्निशिंग। नूडल्स को मैं अंदर मिक्स कर रही हूँ, वरना अगर आप चाहें तो उसको सॉरी दी एग जो है ऑमलेट उसको मैं अंदर मिक्स कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप उसको ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब इस पॉइंट पे टेस्ट टेस्ट कर दें। इफ़ यू वांट इसके अंदर कुछ थोड़े से कमी एडिशंस करने हैं तो आप एडिशंस कर लें, अदरवाइज़ इट्स गुड टू गो। तो बल्कि इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। लेट्स पुट दिस असाइड। लेट्स ब्रिंग इट क्लोजर हियर। और पहले जो है वो मैं सिर्फ नूडल के पार्ट उठा लूँगी ताकि वी हैव अ नाइस बेस, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों के साथ वी कैन फिल इन द गैप्स, यानी कि गार्निश इट विद इट। यहाँ पे एंड आइडियली व्हेन यू आर मेकिंग दिस रेसिपी आई वुड रिकमेंड कि अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं बिल्कुल रेडी रखें ताकि यू कैन मेक इट ऑन ए हॉट वॉक। दैट एड्स टू द फ्लेवर, इट एड्स टू द स्टीमीनेस एंड इट मेक्स इट लुक मच बेटर, प्लस जल्दी भी बन जाता है। सो हु डजंट लाइक दैट। यहाँ पे आप एडेड द नूडल्स। अब इसके अंदर जो है वो मैं थोड़े से चंक्स जो हैं यहाँ पे प्रॉन्स के, थोड़े से चंक्स जो हैं चिकन के, द ग्रीन चिलीज़ इनको ऊपर रख देती हूँ। अब पार्ट विद द एग्स एज वेल। देयर वी आर। थोड़ी सी यहाँ पे और भी है मेरे पास, लेट्स ग्रैब दैट। सम हियर ऑन द साइड्स। सो ये जो है अब डिपेंड्स कि हाउ वेल यू वांट टू प्लेट इट। अगर आप चाहें तो चिकन एंड जो प्रॉन्स हैं उसको अलग भी रख सकते हैं और अलग बनाकर और उसके बाद फिर इसके ऊपर रख दें। बट क्योंकि ये एक स्ट्रीट फूड भी माना जाता है एंड इन इंडोनेशिया इट्स ए कंफर्ट फूड, तो आपने सारी चीज़ें एक ही में टॉस करके यू कैन मेक इट। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू ऐड इन सम लेफ्ट ओवर ग्रीन चिलीज़ जो हमारे पास थी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रिंकल दोज इन। दिस इज़ प्योरली कि अगर आपको हल्का सा स्पाइस एलिमेंट इसके अंदर बढ़ाना है। एंड ऑफ कोर्स फाइनल गार्निशिंग के लिए वी गोइंग टू ऐड इन सम स्कैलियंस, जस्ट अ लिटिल बिट। आई एम गोइंग टू ऐड मोर ऑफ द ग्रीन पार्ट क्योंकि वाइट पार्ट अच्छा खासा आ गया है। एंड दैट इज़ इट, वन जाइंट बोल ऑफ कम्फर्ट, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ फ्लेवर। बल्कि मैं इसको यहाँ पे ला के रख देती हूँ राइट हियर। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। दिस इज़ इंडोनेशियन एक डिश है, इट्स कॉल्ड बामी गोरैंग या फिर मी गोरैंग, डिपेंड्स कि कौन से आप एरिया में हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही हैं। इसके भी वेरिएशंस होते हैं। यू कैन स्किप द चिकन, यू कैन स्किप द श्रिम्प्स, सिर्फ चिकन इस्तेमाल करें या कोई और चीज़ डाल लें, बल्कि इफ़ यू वांट तो आप थोड़ा सा बीफ भी ऐड कर सकते हैं। सो लिटिल बिट चेंजेस जो आप कोई भी चीज़ ऑल्टरनेट करना चाहें।
You can do that. With that being said, recipe complete हो गई है. Noodle day 2 is over. We shall wait for noodle day 3. Inshallah, कल मिलेंगे with a new recipe from somewhere else around the world. And if you have any suggestions, do give us a call or a feedback. और मिलते हैं inshallah कल. Allah Hafiz.